Hi everyone, today we will study about pedigree. Okay, pedigree analysis. Right? So what is pedigree? Pedigree, it is not a biscuit of the dogs you have heard of. Okay, this is a family tree that represents a person's genetic family history. ठीक है, or we can say it is a chart. ठीक है, a family chart that represent the genetic disorders. Right? अब इसमें जो हम डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं. Okay, they are the Mendelian disorders, not the chromosomal ones. Okay, chromosomal disorders like Down syndrome, Klinefelter syndrome, that we will not study in this. Okay, Down syndrome means you have seen that at the 21st chromosome, one chromosome is added, right? So this is the situation. So here we are not going to study the chromosomal disorder. We will study only the Mendelian disorders like the disease sickle cell anemia, okay, sickle cell, hemophilia, cystic fibrosis, okay. So the disease which are present on the genes, okay, that we will study in the pedigree analysis or pedigree tree. Now here you can see this is a karyotype of human. ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स आर देयर एंड हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. नाउ द डिजीज कैन बी ऑन दीज ऑटोसोम्स लाइक 1 to 22. ओके, यहाँ पे अगर वो डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी जीन डिफेक्टेड है, so that is an autosomal disorder, right? If the disorder is on the sex chromosome, okay, sex chromosome का अगर वो जीन डिफेक्टेड जीन सेक्स क्रोमोसोम पे है, then that is a sex linked disease, ठीक है, or we call it a X linked disease. Why X linked? Because mostly the genes are present on X chromosome, right? Few genes are there on Y chromosome. So Y-linked disorder is also there, but the main focus is on the X-linked disease, right? Because X क्रोमोसोम के पास बहुत सारी जीन्स होती हैं और जिसकी वजह से कई सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ठीक है, so let's move on to the next slide. Here you will see the expected pattern for various types of inheritance in pedigrees. So these are the inheritance pattern. First is the autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant and X-linked recessive. Right? Now, autosomes means clear to you. Autosomes means the disease is present on autosomes. And X-linked means the disorder is on the X chromosome. Now, the situation is dominant and recessive. Now, in dominant situation, you know that the disease will show its effect in both the situation. What are those both? Like if both the genes are homozygous dominant, दोनों ही genes अगर homozygous dominant है, that person will show the defect, okay, or we can say that person is affected. Second situation is if they are a heterozygous condition, right? One gene is dominant and the other one is in recessive form. Now this person is also affected because dominant will show its effect when there is only one allele also. Okay, अभी कौन सी सिचुएशन में शो नहीं करेंगे? It will not show in this situation when the situation is homozygous recessive. In this situation the person is normal. Okay, these are the defected ones, right? ऑटोसोमल रेसेसिव की बात करें तो रेसेसिव कौन सी फॉर्म में शो होगी? केवल इसी फॉर्म में, राइट? तो ये पर्सन अफेक्टेड होगा, दिस एंड दिस इज नॉट अफेक्टेड. ठीक है, ये तो आपको क्लियर है ना? रेसेसिव जब शो होती है जब दोनों ही जीन जो है रेसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस कंडीशन में. नाउ वी मूव ऑन टू द एक्स लिंक्ड डोमिनेंस. पहले हम बात करते हैं फीमेल की. अगर दोनों ही क्रोमोसोम पे वो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, देन द फीमेल इज अफेक्टेड. एंड अदर सिचुएशन इज
When it is present on one chromosome and the other chromosome is normal, then also the female is affected, right? क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है। नॉर्मल कब होगी? जब दोनों ही क्रोमोसोम पे वो जीन नहीं होगी। ठीक है, अब मेल की बात करें तो मेल इज हैविंग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अगर एक्स पे वो जीन प्रेजेंट है देन द मेल इज अफेक्टेड। ठीक है, ये अफेक्टेड है। नॉर्मल कब होगा? जब नहीं। ठीक है, तो यानी कि मेल के एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे वो अगर जीन प्रेजेंट है देन आल्सो इट शो इज अफेक्ट। ओके, नाउ एक्स लिंक्ड रेसेसिव में बात करें पहले फीमेल की, तो रेसेसिव फॉर्म है। ठीक है, रेसेसिव फॉर्म में अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में है और एक रेसेसिव फॉर्म में है then this female is going to be the carrier। ठीक है, ये affected नहीं है, not affected, she is not affected but she is going to be the carrier, means she will transfer the disease to the offsprings। ठीक है, अभी affected कब होगी? जब दोनों ही क्रोमोसोम पे रेसेसिव फॉर्म में वो जीन होगी, then this female is going to be affected, right? Okay, this is the normal female। मेल की बात करें, अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन है तो वो मेल जो है अफेक्टेड होगा। मेल कैरियर नहीं हो सकता, मेल अफेक्टेड होगा बिकॉज मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो ये जो जीन है इसको ना हम डोमिनेंट कहेंगे ना ये रेसेसिव कहेंगे, ये तो भाई शो करेगी ही करेगी अपना इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जो मेल का ये क्रोमोसोम होता है ये हेमीजाइगस होता है, मींस इसके जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे हैं, राइट? सेक्स क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। वाई पे तो बहुत कम जीन्स होते हैं, तो जितने भी एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स हैं वेदर इट इज इन रेसेसिव और डोमिनेंट फॉर्म दे विल एक्सप्रेस। तो भाई यहाँ पे मेल तो अफेक्टेड होगा ही होगा। ओके, मेल केवल इस सिचुएशन में नॉर्मल है जब उसके पास कोई भी इफेक्टेड एलील प्रेजेंट नहीं है एक्स क्रोमोसोम पे। इज इट क्लियर टू यू? राइट, सो नाउ मूव ऑन टू दी वाई-लिंक्ड डिसऑर्डर। ओके, दीज आर सम ऑफ द वाई-लिंक्ड डिजीज। हेयरी ईयर्स, ठीक है, ईयर्स के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। देन वेब टोज, दीज आर वाई-लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब आप जानते हो कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो इसमें जो फादर है, फादर जो है अपने सन को वाई क्रोमोसोम देगा ही देगा, राइट? और एक्स क्रोमोसोम वो किससे लेगा? अपनी मदर से। वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, तो भाई वाई क्रोमोसोम पे वो जीन है ही अफेक्टेड वाली, तो ऑब्वियसली द सन, सॉरी ये फादर से लिया है तो ये सन जो है अफेक्टेड होगा। सन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, जितने भी सन होंगे वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिंबल्स यूज इन द पेडिग्री। सिंबल्स कैसे यूज होते हैं? फर्स्ट इज अ स्क्वायर शेप, दैट मीन्स इट इज अ मेल। सिंपल सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल। ओके, a straight line joining both the person male and female represent their marriage or mating. If there is a double line in between these two, then it represents marriage between relatives. Okay, it is also called consanguineous marriage. ठीक है, बहुत दूर के रिश्तेदारों में ही शादी हो जाती है, तो that is a marriage between relatives. Is it clear? अब इस स्क्वायर को हम फिल कर दें, then it means it is a affected male, means इस मेल को डिजीज है। If the circle is filled, then it represent affected female. ठीक है, if I make a line like this in the box or in the circle, that it represents deceased, mean the person is died. Okay, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, चलिए अभी ये सिंबल मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, और अगर सर्कल में अगर डॉट लगा है इट मींस जो फीमेल है वो कैरियर है,
राइट, बट मोस्टली इन द पैडिग्रीज ये शो नहीं किया जाता है, राइट। अब एक सैंपल लेते हैं पैडिग्री का, जिससे हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑल द सिंबल्स। ठीक है, ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, मैरिज हो गई इनकी ना। अब इनके जो सन्स हैं या डॉटर्स हैं, दैट वी विल शो बाय दी वर्टिकल लाइंस। कौन सी लाइंस? वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द चिल्ड्रंस। These are the childrens of this couple। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है, दिस इज द सेकेंड जनरेशन। जनरेशन वी ऑलवेज रिप्रेजेंट विद द रोमन नंबर्स। ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है। ठीक है, अब जो पहला चाइल्ड है इनका, वो हम एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड, दिस इज द सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन, राइट। जो एक्सट्रीम राइट में है वो सबसे छोटा है, यानी ये यंगेस्ट वन, ये यंगेस्ट चाइल्ड है, दिस इज द एल्डेस्ट वन। अब सपोज इन चाइल्ड में से इसको डिजीज है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे कलर से। ये अफेक्टेड फीमेल है, ओके। अगर मैं इसे फिल कर दूंगी तो ये हो गया अफेक्टेड मेल। इज इट क्लियर? नाउ सपोज दिस चाइल्ड गेट मैरिड, इसकी शादी हो गई और इट इज एक्सपेक्टिंग चाइल्ड, तो दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट सेक्स अनस्पेसिफाइड, मीन्स द सेक्स वी डोंट नो। अभी ये कंसीव किया है, वी डोंट नो वेदर द चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, तो सेक्स वी डोंट नो राइट नाउ, तो दिस इज द सिंबल rhombus shape is used to represent the sex unspecified। Alright, अब suppose this male is also married now and they have twins। Now twins can be monozygotic and dizygotic। ठीक है, अगर वो monozygotic twins हैं तो उनको हम represent करेंगे like this। ओके, ये दोनों ये कनेक्ट कर देते हैं, मीन्स दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस आप जानते हैं कि एक जाइगोट जो होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों जो बनेंगे, या तो ये फीमेल फीमेल होंगे या ये मेल मेल होंगे, राइट, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम कनेक्ट कर देते हैं, राइट। अगर यहाँ पे ये डाइजाइगोटिक ट्विंस होते तो उनको हम कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस में एक फीमेल और मेल भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं और मेल मेल भी हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट मोनोजाइगोटिक में दोनों चाइल्ड या तो फीमेल फीमेल होंगे या फिर वो मेल मेल होंगे। इज इट क्लियर? ये डाइजाइगोटिक है, मीन्स ये दो जाइगोट से बने हैं। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे, ये कनेक्शन नहीं होगा। ओके गाइस, होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। सो दिस इज अ सैंपल ऑफ अ पैडिग्री। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, द बॉक्स रिप्रेजेंट फीमेल, मैंने फीमेल लिख दिया क्या? ओके, फादर मदर लिखा हुआ है। सो दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल। ठीक है, और अगर कलर कर दिया जाता है तो दैट इज अफेक्टेड पर्सन, अफेक्टेड फीमेल है ये, अफेक्टेड मेल है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन बोथ रिप्रेजेंट द मैरिज और रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज द सेक्स अनस्पेसिफाइड, अभी सेक्स पता नहीं है इस चाइल्ड का। दीज आर द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ओके, सो आपके लिए जो जरूरत के सिंबल्स हैं वो यही है, स्क्वायर, सर्कल और फिल्ड सर्कल्स और फिल्ड स्क्वायर। जनरली दीज आर द ओनली सिंबल्स विच वी विल सी। नाउ व्हाट इज प्रोबैंक और प्रोपोजिटस, ये क्या है? देखिए, जब भी हम फैमिली पेडिग्री ट्री जब पढ़ते हैं या किसी डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो कोई कहीं ना कहीं से वो शुरुआत हुई है ना। ओके, तो दैट 40% इज गोइंग टू बी द प्रोबैंक। ठीक है, लाइक दिस इज अ फैमिली, अब इनके जो बच्चे थे इसमें वो डिजीज है, इसमें नहीं थी, तो भाई यहाँ से शुरुआत हुई है इस डिजीज की। ठीक है, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द प्रोबैंक।
right? Let us read the definition. So pedigree begins with a affected person first found to have a faulty trait. तो कहीं ना कोई तो है जिसमें faulty trait present है, through whom the family came into attention. तो भाई वहीं से तो उस फैमिली की अटेंशन स्टार्ट हुई है कि भाई ये डिजीज आ कहां से रहा है आखिरकार, ठीक है? तो दैट इज द प्रोबेट. होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स लर्न short trick to know which pedigree is given to you. ठीक है, तो पहले हम short trick जान लेते हैं. So first you have to see the pedigree and find out whether it skips generation or not. ठीक है, and unaffected parents have affected child or not. ठीक है, क्या वो पेडिग्री में जनरेशन स्किप हो रही है और पेरेंट्स में डिजीज नहीं है लेकिन चिल्ड्रन में डिजीज है. अगर ये सही है यस, देन दैट इज अ रेसेसिव पेडिग्री. और अगर आपका आंसर नो है देन दैट इज अ डोमिनेंट पेडिग्री. ओके, सो इन द डोमिनेंट पेडिग्री यू विल सी no skip of generation, and you will see that affected parents have unaffected child. ठीक है, पेरेंट्स को डिजीज है लेकिन हो सकता है वो बच्चों में नहीं हो. गेटिंग माई पॉइंट? सो देखिए मैं एक सिचुएशन बनाती हूँ. जैसे ये पेरेंट है, इनके जो बच्चे हैं हो सकता है इनमें वो डिजीज ना हो तो वो डोमिनेंट हो जाएगी. ठीक है, तो आपको दोनों चीज देखनी है कि क्या वहां पे जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, क्योंकि डोमिनेंट डिजीज जब होती है तो जनरेशन स्किप नहीं होती है. जैसे पहली जनरेशन में वो डिजीज होगी, सेकंड में भी होगी, थर्ड में भी होगी एंड सो ऑन. ओके, अगर इससे आंसर नहीं मिलता है तो देन यू हैव टू मूव ऑन दिस, दैट अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड. ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड, तो दैट इज अ डोमिनेंट पेडिग्री. ओके गाइस, होप इट इज क्लियर. सो पहला क्वेश्चन आपको पूछना है, इट स्किप्स जनरेशन और नॉट, एंड अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड. अनअफेक्टेड पेरेंट, देखिए रेसेसिव में उल्टा हो रहा है, पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड बट देयर चिल्ड्रंस can be affected. ओके, तो अगर आपका आंसर यस में है तो अब आगे चलेंगे. आपको पता चल गया रेसेसिव है. ठीक है, अब आपको पता करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि मदर ट्रांसफर द डिजीज to sons. Is the mother transferring the disease to sons or not? ठीक है, affected mother. Okay, mother is affected. So is the affected mother is transferring the disease to sons or not? If it is yes, then that is a X-linked recessive. हमने पहले पता कर लिया था recessive pedigree. Otherwise it is autosomal. ठीक है, just wait for the example. We will do the example as well. So don't worry. So affected mother जो है सारे sons को डिजीज देगी ही देगी, तो 100% sons जो है affected होंगे, तो वो X-linked है. ठीक है, अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके जितने भी सन हैं, उससे जितने भी लड़के हैं वो सारे अफेक्टेड होंगे. और डोमिनेंट के केस में क्या होगा, यहाँ पे नो है, डोमिनेंट के केस में क्या होगा, affected father is transferring the disease to all daughters. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फादर जो है डॉटर्स को दे रहा है. तो पहले डोमिनेंट पता कर लिया आपने, अब आपको पता करना है एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है. तो एक्स लिंक्ड होगा तो जो फादर अफेक्टेड है वो सारे सन्स डॉटर्स को अफेक्ट करेगा. अगर फादर में वो डिजीज है
तो वो डॉटर में होगी ही। अगर ये सिचुएशन सही है, यस है, तो वो एक्स लिंक्ड है, अदरवाइज इट इज ऑटोसोमल। राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग। देखिए, रेसेसिव से आप रेसेसिव वर्ड का मतलब जानते हैं, डोमिनेंट का आप मतलब जानते हैं, भाई बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। रेसेसिव ज्यादा डोमिनेट नहीं करता है भाई, अपने आप को शो करने की बड़ी मुश्किल से कोशिश करता है। तो भाई एक तो ये स्किप जनरेशन करेगा, बहुत इजीली आपको याद रहेगा। रेसेसिव का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट स्किप जनरेशन छोड़ देता है। भाई मैं नहीं दिखा रहा अपने आप को। पेरेंट्स अनअफेक्टेड होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है लेकिन अफेक्टेड चिल्ड्रन, याद रखिए पेरेंट्स अनअफेक्टेड। देन मदर अफेक्टेड है तो वो सन को अफेक्ट करेगी, ठीक है। मदर इज रेसेसिव, पापा बहुत डोमिनेट करते हैं, पता है आपको, पापा डोमिनेटिंग होते हैं, मम्मी ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होती मोस्टली, ओके, नॉट इन ऑल केसेस। सो बट रिमेंबर, इफेक्टिव मदर ट्रांसफर द डिजीज टू ऑल द सन्स, सो दिस इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ये सब सीएस में आ रहा है तो आपका वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो पहले आपको रेसेसिव पता करना, डोमिनेंट पता करना, ठीक है। रेसेसिव कब होगा? जब वो स्किप जनरेशन कर रहा है और अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे हैं तो वो रेसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट कब होगा? अपोजिट केस में, जनरेशन स्किप नहीं कर रहा और अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अफेक्टेड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है अनअफेक्टेड ही होंगे, पर अफेक्टेड भी हो सकते हैं, बट दे कैन बी अनअफेक्टेड ऑल्सो, ओके। Okay, is it clear now? Now let's move on to the pedigree. Oh, so here is the image where you have to find out which pedigree it is. Okay, so here you can see the disease is present in first generation, then it is moving to the second generation also. ठीक है, यहाँ पे भी पहली जनरेशन में है, दूसरी जनरेशन में भी वो डिजीज है, ठीक है। आप दूसरी सिचुएशन देखिए, अफेक्टेड पेरेंट्स have unaffected child, ये चाइल्ड जो है इनका unaffected है, this child is unaffected, okay, this is affected parent, this child is unaffected। तो कौन सा डिजीज हो गया, कौन सी पेडिग्री हो गई? ये डोमिनेंट पेडिग्री, डोमिनेंट होगी, ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए, ये देखिए, ये पेरेंट अफेक्टेड है, ये पेरेंट अफेक्टेड है, ये नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स अफेक्टेड बट चिल्ड्रंस, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये नहीं है, ठीक है। इसे भी आप देख सकते हैं, इस पेरेंट अफेक्टेड है, इसके बच्चे अनअफेक्टेड हैं, ठीक है। और हर जनरेशन में ये प्रेजेंट है डिजीज, तो इट इज अ डोमिनेंट डिजीज, डोमिनेंट है, ठीक है। डोमिनेंट पता चल गया हमें। अभी एक्स लिंक्ड है या नहीं है? एक्स लिंक्ड होगी तो भाई अफेक्टेड फादर जो है सब डॉटर को ट्रांसफर करेगा। अफेक्टेड फादर विल ट्रांसफर द डिजीज टू ऑल द डॉटर। यहाँ पे देखिए, ये अफेक्टेड फादर है, क्या ये डॉटर में डिजीज दे रहा है? इस डॉटर में नहीं दे रहा है, तो ये कौन सी डिजीज हो गई? इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओके। इसमें पता कर लीजिए, ये अफेक्टेड फादर है, इज इट ट्रांसफरिंग द डिजीज टू द डॉटर? नो, so it is autosomal dominant. Hope it is clear. Okay, so this is the pedigree of autosomal dominant. Now move on to the next pedigree. Okay, so first question is it skipping generation? भाई skip generation किसमें होती है? रेसेसिव में। स्किप जनरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्किप हो गई जनरेशन, इसके तीनों बच्चों में नहीं है, ठीक है। भाई ये तो बाहर से आया ना, किसी और फैमिली का है, राइट। अब इसमें नहीं है तो ये स्किपिंग जनरेशन हो गई, तो कौन सा हो गया? रेसेसिव हो गई। दूसरी सिचुएशन देख लीजिए, क्या अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड? देखिए यहाँ पे देखिए, अनअफेक्टेड पेरेंट दिया था, अनअफेक्टेड पेरेंट दे हैव अफेक्टेड चाइल्ड, okay, obviously it is recessive, clear? Unaffected parents have affected child, it is recessive। अब ये पता करना है एक्स लिंक्ड है या नहीं है। रेसेसिव पता कर लिया, तो अब हमें पता करना है अफेक्टेड मदर ट्रांसफर द डिजीज टू सन्स और नॉट। मदर क्या बच्चों में ट्रांसफर कर, सन में ट्रांसफर कर रही है डिजीज? मदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मदर है,
क्या ये सन में ट्रांसफर कर रही है? 100% सन में। ओके, इसमें नहीं करा इसने, इसमें करा है, तो भाई 100% तो नहीं है ऑब्वियसली, तो इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव। तो दिस pedigree is of autosomal recessive. Hope it is clear. Now on to the next one. So first find out the dominant or the recessive one.